यस फ्रेंड्स, ये वाला लेक्चर है, ये बेस्ड ऑन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉर्मूले फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू सम एंड डिफरेंस, और वाइस वर्सा। आई हैव टेकन हियर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस और वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि आइदर फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस और फ्रॉम sum and difference to product. Okay, sum and difference to product. These are two forms. एक दूसरे के अपोजिट हैं बट सिमिलर टाइप की हैं, क्योंकि एक से दूसरा को हम दूसरे को प्रूव कर सकते हैं. ओके, और फ्रॉम द सेकेंड वन वी कैन प्रूव द फर्स्ट वन और फर्स्ट वन सेकेंड. तो उससे पहले मैं सबसे पहले फॉर्मूले लिखता हूँ, क्या क्या फॉर्मूले हैं जिन पर बेस्ड ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स की क्वेरीज है विच आई हैव टेकन फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड कुछ ऑनलाइन लोगों ने पूछा हुआ है. वो क्वेश्चन हैं कुछ क्लास में स्टडी जो हम करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में. ओके, और इन मैनेजमेंट कॉलेजेस still these questions are not coming, but some chapters are there which are devoted to geometrical calculations, okay, in quantitative techniques and quantitative methods. Okay, so in quantitative methods these questions sometimes are coming, so we discuss about them. I'll just take them and management subject also, quantitative methods and quantitative techniques, that I'll discuss also, because I've taken in the playlist okay, the name of the subjects, quantitative methods and quantitative techniques in playlist also. There I'll discuss about that, and then I'll talk about how trigonometry is also helpful for management students, as well as engineering is okay. Engineering is the base for okay, I mean this is the base for engineering students, and already trigonometry is must for them. But for management students also, some of them, some topics are there which are also included there. Okay, so that I'll discuss whenever the topic will come. Okay, but at the moment let me take the basics of this. तो सबसे पहले बेसिक्स क्या है इसकी. जो फॉर्मूले हैं वो 8 टाइप के फॉर्मूले हैं, 4 एक टाइप के और 4 दूसरी टाइप के. दोनों टाइप के क्वेश्चन पर फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस एंड फ्रॉम सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट. ओके, तो लेट मी पहले सबसे उन क्वेश्चंस को मैं लिख देता हूँ. आई मीन फॉर्मूले. सबसे पहले फॉर्मूले हैं द फॉर्मूले बेस्ड ऑन प्रोडक्ट टू सम. दिस इज आर प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस. लेट मी फर्स्ट टेक दैम on which these questions are based. The formulae based on product, sum and difference of trigonometric functions. सबसे पहले मैं इनको लिखता हूँ. ये जो फॉर्मूले हैं 4 फॉर्मूले मोस्टली, मतलब दोष फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम टू साइन ए कॉस बी. अगर ये फॉर्मूला होता है, ए और बी दोनों एंगल्स हैं, sin A cos B, then this is equal to, इसकी वैल्यू आती है sin A plus B plus sin A minus B. Okay, this is from product to sum and sum. This is plus sign here, so this is sum formula, product to sum formula. Okay, second C का ये वो है 2 cos A sin B. इसकी वैल्यू क्या होती है, ये है sin A plus B minus sin A minus B. ये हुआ प्लस टू डिफरेंस, तो दिस इज माइनस साइन A, डिफरेंस साइन. ओके, so this is from plus to difference. Then third one, 2 cos A cos B. 2 cos A cos B, ये होता है cos A plus B plus cos A minus B. Okay, sorry, this is cos A cos B and this is plus sign here. We have to add them, right? Then fourth question, this is 2 sin A sin B. ये जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये some difference. I mean the topic is in this way. This is cos first A minus B, then minus cos, okay, B minus A. I'm sorry, this is A plus B.
what I'm doing here. This is a plus b only. No problem. Only before minus sign we have taken cos a minus b. This is the only difference. Here it is a plus b. And if I put this और ये माइनस साइन को आप कॉमन लेते हैं, सपोज तो ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, माइनस टू साइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी. अगर हम साइन वाले फॉर्म में रखते हैं तो ये साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी फर्स्ट लिखते हैं और ये माइनस करते हैं, तो माइनस साइन आपको कॉमन लेना होगा. माइनस साइन कॉमन लोगे तो इधर आ जाएगा माइनस टू साइन बी हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी. ये फोर्थ फॉर्मूला है. ठीक है, ये चार हो गए फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला. देयर आर फोर मोर फॉर्मूले. व्हाट आर दोस? द फॉर्मूले फ्रॉम sum and difference to product form, to product of trigonometric functions, to trigonometric functions. ये चार फॉर्मूले और बड़ा दोस्त देखिए, इसमें आता है साइन सी प्लस साइन डी. अगर आपने साइन सी प्लस साइन डी लिखा, ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ है लेक्चर नंबर इससे पहले वाले 7th लेक्चर सीरीज में. आप ये देखोगे कि ये सब फॉर्मूले हमने किस तरह से ड्राइव किए हुए, वो आप वहाँ देख सकते हैं. सिंपल है, तो आप उनको देख चेक कर सकते हो. देन यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन. स्टिल आई एम राइटिंग दीज फॉर्मूले सो दैट वन कैन रिमेंबर एट द टाइम जब हम इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, उस समय आप ये याद रख सकते हैं कि हमने ये फॉर्मूला यूज किया. नाउ साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन होता है 2 साइन सी प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 6 साइन सी माइनस साइन डी. अगर दो एंगल सी एंड डी है तो हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2. देन 7th वन, अगर कॉस सी प्लस कॉस डी होता है तो इसकी वैल्यू आती है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2. Okay, then 8th question formula. 8th formula is what is that? It is cos C minus cos D. If we take in the same frame cos C minus cos D, then it will be 2 sin C plus D by 2 into sin, ये आपको याद रखना, D minus C by 2. Try to understand. ये क्यों? क्योंकि 2 sin C plus D by 2 into sin D minus C by 2, D minus C by 2. This is different from other formula. This is C minus D, C minus D, C minus D in the other formula, but in this case it is D minus C. Otherwise, if I take minus sign common, then it will be C minus D, and sin minus theta is minus sin theta, so it will be negative sign here. And if I want to remove that negative sign, then here it will be the left hand side cos D minus cos C. In that way it will be changed. So either way, either write the difference here D minus C by 2 in the right hand side, or write in the left hand side cos D minus cos C, then it will be C minus D. Okay, so in either way we can remember. या तो आप इस तरह से रिमेंबर करें और या फिर cos D minus cos C करिए तो यहाँ C minus D upon 2 आ जाएगा. ओके, तो ये 8 फॉर्मूले हैं जिनके बेस पर ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं. अब जरा मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए कि इस तरह क्वेश्चन करते हैं. ये फॉर्मूले पर बेस्ड. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ओके पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज ए पार्ट. इसमें 4 पार्ट्स हैं, so there are 4 parts in it. Let me take one by one. ये पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ए में क्या है? दिस इज साइन
75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। इसको सॉल्व करना, इसकी वैल्यू फाइंड करिए। दिस इज टू फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द फॉलोइंग, to find the value of the following. I've written down there, evaluate the following. Find the value of this. Okay, so we have to apply here sin C plus sin D formula, the fifth one. Okay, that formula. Since we know that sin C plus sin D is equal to 2 sin C plus D by 2. ये होता है into cos C minus D by 2. Right? तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। सॉल्यूशन देखिए, therefore this formula that is sin 75 plus sin 15 degree. In place of D we have 15 degree, in place of C we have 75 degree, और vice versa we can take lesser value before the problem. इसकी वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से देखिए कैसे आती है। तो यहाँ पर 2 sin 75 degree plus 15 degree divided by 2 into cos 75 degree minus 15 degree upon 2. सेम फॉर्मूला हमने ये अप्लाई किया, जो हमने ये लिखा हुआ फॉर्मूला जिसका बेस्ट ये रिजल्ट है इसका। सॉल्व कर लीजिए फर्दर। 2 sin, दिस इज 2 sin 75 plus 50 हुआ 90 डिग्री upon 2 into cos 75 minus 50 60 डिग्री हुआ upon 2। ये हुआ 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। इनकी वैल्यूज हम जानते हैं और आपको आनी चाहिए। याद करते हैं sin 45 डिग्री जो सेम cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है वो तो क्या होती है, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। 1.2 होती है। व्हाट इज cos 30 डिग्री? cos 30 डिग्री एज sin 60 डिग्री, दिस इज नथिंग बट √3/2 होती है। और cos 30 डिग्री को अगर आपको साइन में चेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री डिफरेंस 30 डिग्री। बट cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन 60 डिग्री साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी साइन 60 डिग्री। This is theta, in place of theta we have 60 degree. Okay, so sin cos 90 minus theta is sin theta, sin 60 degree। sin 60 degree is √3/2। ये हमने एक्सप्लेन किया होगा। अगर एंगल आपको cos वाले याद है, हमने sin में कन्वर्ट कर लो, ओके, फिर sin अपॉन cos करके हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और या टेबल याद रखते हैं जो आपको बताई गई, हमने आपको स्टार्टिंग में बताई टेबल किस तरह से बनाते हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। नाउ लेट मी सॉल्व इट। देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है फाइनली। ये 2 कैंसिल आउट, इज √3 अपॉन √2 और वी कैन राइट डिवाइडिंग बाय √3 मल्टीप्लाइंग बाय √3 into √2 रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। हमेशा डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट से फ्री रखते हैं, इसे कहते हैं रैशनलाइज करना। डिनोमिनेटर रैशनलाइज किया उसके लिए √2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ये √2 into √3 √6 आ जाता है upon 2, either this is the answer or just √3 upon √2 is the answer। और रैशनलाइज करके रखते हैं तो ये प्रॉपर आंसर √6 upon 2। okay, this is the final answer। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, इसकी आंसर ही आ जाता है। इस तरह से आप इसको करते हैं। मीन्स वी हैव वो फॉर्मूला अप्लाई किया साइन वाला, साइन ए साइन सी प्लस साइन डी। देखते हैं इसका बी पार्ट क्या कहता है। व्हाट इज द बी पार्ट ऑफ दिस? ओके, बी पार्ट है साइन 50 डिग्री माइनस cos 80 डिग्री। अब ये डिफरेंट है cos 80 डिग्री, इसको साइन साइन में कन्वर्ट करते हैं। साइन एक तो है, cos 80 डिग्री को हम लिख सकते हैं इस तरह से। हियर दिस इज इक्वल टू व्हाट? Let me write sin 50 degree minus cos 80 degree, which can be written, हम इसको लिख सकते हैं जिससे sin 50 degree as it is, cos को लिखा आपने cos 90 degree minus 10 degree। why? Okay, 80 degree 90 minus 10 होता है, तो ये cos 90 minus theta is equal to sin theta। ये फॉर्मूला आपको
गिवन है, दिस इज साइन 10 डिग्री सिंस cos 90 minus theta is equal to sin theta. In case of theta हमारे पास 10 डिग्री है, तो ये sin 10 डिग्री हो गया। अब इसको sin c माइनस sin d वाला फॉर्मूला क्या होता है, सिंस sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूला आप यहाँ लगा दीजिए, लेट मी राइट हियर, दिस इज 2 cos 3 डिग्री प्लस 10 डिग्री अपॉन 2 इंटू साइन 3 डिग्री माइनस 10 डिग्री अपॉन 2। ये हो गया 2 60 डिग्री अपॉन 2 30 डिग्री इंटू साइन कितना होगा 40 डिग्री अपॉन 2 20 डिग्री। साइन 20 डिग्री की वैल्यू हमें नोट नहीं है, टेबल में आप देख सकते हैं, इवन में ये टेबल आती है वैल्यूज के लिए साइन कॉस वाली, ठीक। तो साइन वैल्यूज एंड कॉस वैल्यूज की टेबल आप देख लीजिए, मैथमेटिकल टेबल आती है, तो आप देख सकते हैं, वहाँ से आप इसकी वैल्यू सकते हैं, अदरवाइज पुट एज इट इज। बट कॉस 30 की वैल्यू आप जानते हैं, √3 राइट, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री इज 3 बाई, हम जानते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू आ गई √3 बाई 2 इंटू साइन 20 डिग्री, 2 कैंसिल आउट, ओके। ये √3 इंटू साइन 20 डिग्री आ गया, तो 40 अपॉन इट इज 40 डिग्री अपॉन 2, दैट मीन्स 20 डिग्री, sin 20 degree only is there, okay, so that is the point from √3 into sin 20 degree। यही इसका आंसर है, तो आपने ये सॉल्व किया इस तरह से, ओके। वी हैव टू इसकी वैल्यू निकालनी थी, हमने सॉल्व कर दिया, ओके। तो ये आंसर था। लेट मी टेक द थर्ड पार्ट ऑफ दिस, व्हाट इज सी पार्ट, लेट मी चेक। अच्छा, इसका सी पार्ट क्या कहता है, देखते हैं। सी पार्ट, अच्छा, सी पार्ट में है cos 4 पाई बाई 5, सॉरी दिस इज 5, cos 4 पाई बाई 5 प्लस cos 5 बाई 5 और 5/5, ये सी पार्ट हो जाता है cos 4 पाई बाई 5 अपॉन 5 प्लस cos पाई अपॉन 5, ओके। तो ये cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला, सिंस cos c प्लस cos d इज इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ लगा सकते हैं, इसलिए यह आ जाएगा 2 cos होल इक्वल टू 2 cos 4 पाई अपॉन 5 प्लस 5 बाई 5 अपॉन 4 इंटू cos 4 पाई अपॉन 5 माइनस 5 बाई 5 अपॉन 2, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, अब देख रहे हैं दोनों ऐड हो रहे हैं, 4 पाई प्लस 5 पाई अपॉन 5 कैंसिल आउट, 5 बाई 2, इट इज 2 cos 5 अपॉन 2, वाई बिकॉज 4 पाई प्लस 5 पाई अपॉन 5 कैंसिल, पाई ओनली इन द न्यूमरेटर, हमारे पास में क्या है पाई ओनली, पाई अपॉन 2 बचता है, इंटू cos 4 पाई में से पाई गया तो 3 पाई अपॉन 5 इंटू 2, ओके। ये वैल्यू आ जाती है, ये वैल्यू कितनी है, पाई हम जानते हैं 180 डिग्री अपॉन दिस 18 या 36 डिग्री, ये cos पाई बाई 2 0 है, 2 इंटू cos पाई बाई 2 मीन्स cos 90 डिग्री, इसे 0 इंटू समथिंग इज 0, ये cos 36 डिग्री था, क्योंकि 180 तो 18 या 54 आंसर, 18 not पूजा बट 18 या 54, दिस इज 54 डिग्री, cos 54 डिग्री, बट 0 इंटू समथिंग 0, ये 0 आंसर आएगा। आप देख रहे हैं कि इसका आंसर 0 आता है, सी पार्ट।
ओके, फर्स्ट का सी पार्ट कंप्लीट। देखते हैं जरा फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट मी चेक। ओके, fourth part is D part. Solution again we will find out. Okay, इसका D part है cos 3 theta minus cos 7 theta. Yes, cos 3 theta minus cos 7 theta. इसको देखते हैं कैसे। अब ये cos C minus cos D का फॉर्मूला वो क्या होता है, cos C minus cos D हम जानते हैं equal to 2 sin C plus D by 2 into sin D minus C by 2. Try to understand। ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। cos C minus cos D में लास्ट में sin D minus C होता है और इस पॉजिटिव रखना है। अगर आप C minus D करो तो ये नेगेटिव साइन आएगा। इस तरह से आप इसको लगा दो। Therefore this whole is equal to cos 3 theta minus cos 7 theta is equal to 2 into sin 3 theta plus 7 theta a plus b upon 2 into sin और d minus c, that means 7 theta minus 3 theta upon 2 और देखते हैं 2 sin 3 theta plus 7 theta 5 10 theta upon 2 means 5 theta 10 upon 2 5 theta. This is 7 theta minus 3 theta 4 theta 4 theta upon 2 sin 2 theta. Okay, so this is the answer. Answer. What is that? Sin 5 theta into sin 2 theta. अगर आप sin 2 theta को फर्दर रिजॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू sin theta cos theta जाए 2 sin theta cos theta can be written as 4 into, but this is 2 sin theta cos theta. This is 2 sin 5 theta into sin theta into cos theta. Can also be written like this. Since sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta, ये होता है। इसलिए क्योंकि आप ये sin 2 theta की वैल्यू कर दी 2 sin theta cos theta, तो मैं यहाँ रख दिया sin 2 theta को मल्टीप्लाई 4 sin 5 theta into sin theta into cos theta। ये आंसर भी हो सकता है दोनों में से, वो था द सेम आंसर। अब ये क्वेश्चन डी पार्ट, क्वेश्चन एक कंप्लीट हो जाता है। मतलब 4 पार्ट थे इसके, हमने कंप्लीट कर दिए। तो चारों को वही फॉर्मूले लगा दिए, क्योंकि सम और डिफरेंस फॉर्मूले टू प्रोडक्ट फॉर्म, द प्रोडक्ट फॉर्म। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। वही फॉर्मूले सेम यूज किया हमने, फॉर्मूले उन्हीं को सॉल्व करते हुए आपने क्वेश्चन निकाला। क्वेश्चन फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए वी हैव टेकन दिस क्वेश्चन अप टू द एंड। ओके, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी पार्ट्स हैं? इसमें 2 पार्ट्स हैं सेकंड क्वेश्चन में। पहला मैं लिखता हूँ, इसमें सॉल्व करना प्रूव द फॉलोइंग। तो फाइंड द फॉलोइंग नहीं, अब प्रूव द फॉलोइंग। तो अब देखिए प्रूव द फॉलोइंग or show the following, prove the following, prove the following। Now second question, first part कैसे है? Okay, it is sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x है। इसकी वैल्यू आती है 4 into cos square x sin 4x। ये आपको प्रूव करना है। देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये sin 6x और sin 2x और ये sin 4x कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें 2 मल्टीप्लाइड है, इसलिए हम इसको तो नहीं ले सकते। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया, इसमें है sin 2x प्लस sin 6x को मैं एक साथ लिख देता हूँ। ये sin 2x प्लस sin 6x, क्योंकि सीरीज में आप कैसे भी लिख सकते हैं, एडिशन में है तभी हम ऐड कर रहे हैं। प्लस ये जो 2 sin 4x है उसको आप एज इट इज रखते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं sin c प्लस sin d, हो देता है sin c
since sin C plus sin D equal to 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2. ये होता है फॉर्मूला आप इसको अप्लाई कर सकते हैं sin C plus sin D दिस वन इसमें आ जाएगा 2 sin 2x plus 6x upon 2 okay into cos C minus D no problem this is twice x minus 6x क्योंकि cos में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि since cos minus theta जब cos theta पॉजिटिव होता है ये इवन फंक्शन होता है इसलिए cos theta is even function it is positive always even with negative angle it becomes positive so this is 4x this is 2 sin now 2x plus 6x 8x upon 2 4x into cos 2x minus 4x minus 4x upon 2 into the this is 2x I'm sorry this plus 2 sin 2x is left over let me write here 2 sin 4x देखते क्या बचता है ये हो गया 2 sin 4x फर्स्ट वन into cos 2x क्योंकि sin माइनस 2x आएगा बट cos माइनस थीटा इज पॉजिटिव cos थीटा तो दिस इज cos 2x ओके प्लस 2 sin 4x अब आप देखते हैं 2 sin 4x 2 sin 4x कॉमन 2 sin 4x आपने कॉमन दिया क्या बचता है फर्स्ट में cos 2x प्लस यहाँ से 1 अब हम जानते हैं फॉर्मूला cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा देयरफॉर इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा ये जो 1 प्लस cos 2 थीटा है इसकी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा होती है इसको आप यहाँ रख देते हैं 1 प्लस cos 2x की जगह पर 2 cos स्क्वायर ये हो जाएगा 2 sin 4x into 2 cos square x only. First 1 plus cos 2x. In place of theta we have x here. This is 2 cos square x. It will give us 4 2 into 4 cos square x. Let me take first into sin 4x. यही आंसर 4 cos square x into sin 4x. यही राइट हैंड साइड आपकी आ जाती है ये प्रूव करना था आपको तो ये प्रूव हो जाता है एंड दिस इज प्रूव नाउ हेंस दिस इज द आंसर ठीक है सेम आंसर आ जाता है 4 cos स्क्वायर x sin 4x ये प्रोसेस था इसका फॉर्मूले से आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला फिट करना है आपको है ना वी हैव टू रिमेंबर देम ओके देखते हैं इसका बी पार्ट क्या है क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट let me take it what is that and let me solve it okay question number B part of देखते हैं क्या है now B part कहता है यह है sin square 6x minus sin square 4x angular 6x 4x प्रूव करना है कि इनिशियल वैल्यू sin 2x into sin 10x की वैल्यू आती है देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया वो क्या है sin square 6x minus sin 4x sin square 4x और we can write it as sin 6x का होल स्क्वायर माइनस sin 4x का होल स्क्वायर अब आप जानते हैं क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b एक ब्रैकेट में दूसरे में a माइनस b और दोनों को मल्टीप्लाई करेगा आपको ये वैल्यू आ जाती है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सिमिलरली ये आप देखते हैं cos sin स्क्वायर x माइनस sin सॉरी sin square 6x this is a different angle okay sin 6x है ये angle different
ये सपोज जैसे ए स्क्वायर जैसे बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी साइन 6x प्लस साइन 4x, एक ब्रैकेट में, दूसरे में साइन 6x माइनस साइन 4x, ये दो ब्रैकेट आ जाती हैं क्योंकि साइन जैसे ए प्लस ए माइनस दो चीज़ आप देखते हैं, साइन ए जैसे ए प्लस बी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, दोनों फॉर्मूले अप्लाई करें, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, फिर साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 ये होता है, एंड साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, इन केस ऑफ साइन इट इज सी माइनस डी बाई 2। ओके, ये दोनों फॉर्मूले आप अप्लाई कर देते हैं, दिस इज साइन सी प्लस साइन डी मतलब 2 साइन 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x अपॉन 2 in one bracket, in another bracket let me out this। अच्छा जी, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आता है, ये साइन 6, लेट मी टेक दिस एज ओके, इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू कॉस 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x। फर्स्ट पहले कॉस आता है, उसके बाद में साइन आता है, इन केस ऑफ साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी फर्स्ट कॉस टू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इनको दोनों को 2 टू द 4 आ गया। फर्स्ट साइन में 6x प्लस 4x 10x अपॉन 5x बचता है इंटू कॉस दिस इज 2x क्योंकि 6x माइनस 4x 2x अपॉन 2 x1 into multiply cos 6x plus 10x is cos 5x, cos 5x here okay, into you get sin 6x minus 4x 2x upon 2 is x1। तो आप क्या देखते हैं, सिमिलर एंगल 5x xx इनको हम दे सकते हैं sin 5x into cos 5x, दूसरे ब्रैकेट में लिख देते 2 sin x into cos x। अब आप जानते हैं sin 2 थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा,